Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine, enjoying good. Today I am here before you guys with a new topic which was written by Philip Larkin, a very famous poem of Philip Larkin, and the name of the poem is Ubad. First of all, let's see a little overview on biography of Philip Larkin. Philip Larkin was born in Coventry, England in 1922 and he died in 1985. He was a poet as well as librarian and as well as he was also a critic. He wrote this poem after the death of his mother. Critics believe that he wrote this poem after the death of his mother, and this poem is actually based on one technique, and that technique is called nihilism. Nihilism is such a technique which reject actually religion or all moral values, or we can also say that nihilism is such a technique that negates the life, that rejects the life. If I talk literal meaning of ubad, what is the meaning of ubad, then we can say that it is actually a French word which means that a song or a morning song or morning poem for greeting. Actually it is a morning love song for the lovers, and but in this poem it is used as ironically. Title is basically ironical. How it is ironical, let's see. If I briefly talk about the summary of this poem, we can say that this is the poem about the poet's daily routine, that he wakes up in the morning and how he's going to spend his life, और जो है the poet waking at 4 4 बजे जो है वो उठ रहा है, साउंडलेस डार्क एंड बीइंग ग्रिप्ड बाय द टेरर ऑफ हिज ओन डेथ, और उसको जो है वो डेथ का जो है बहुत ज़्यादा खौफ है, एंड ही इज़ थिंकिंग दैट ही इज़ गेटिंग क्लोज एवरी डे टू द डेथ एंड सून ही विल बी caught by the death. Now I am going to explain stanza wise explanation of this poem. There are actually 5 stanzas, and each of them comprises of 10 lines. So first of all we'll talk about the stanza number 1. What is in stanza number 1? Let's see the text first of all. He says that I work all day and get half drunk at night. Waking at 4 to soundless dark, I stare. In time, the curtain edges will grow light. Then I see what's really always there, unresting death, a whole day nearer now, making all thought impossible. But how? And where and then I shall myself die. Arid interrogation, yet the dread of dying and being dead. Flesh is afresh to hold and horrify. This was the text of first stanza. Basically, the first stanza introduces the poem's rhyme scheme A B A B C C D E E D. Iambic pentameter जो है rhyme scheme को जो है ये stanza जो है follow कर रहा है. Let's explain that what he is talking in this particular stanza. इस particular stanza में जो है Philip Larkin ने जो है हमें first of all जो है he introduces his daily routine. We can say that the speaker is going to introduce his daily routine, that he spends all day working and he gets half drunk at night. सारा दिन जो है वो काम करता है और at night जो है वो half drunk कर लेता है. And speaker, this also shows that speaker is not happy with his job, and he also wakes up in middle of the night and sits alone, or then he says that when he wakes up at the mid of the night he is consumed by the thought of the death. वो कह रहे हैं कि इसमें ना कि जो पोइट है वो सारा दिन काम करता है, रात को जो है जब वो सोता है तो वो आधी रात में उठ जाता है और उससे जो है इस बात का खौफ है कि मेरी डेथ जो है वो मुझे पकड़ लेगी, वेरी सून जो है दैट विल मस्ट कैच मी. और ये चीज़ जो है इस चीज़ को शो करिए कि दैट जो हमारा स्पीकर है वो एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है, एज़ वेल एज़ फिज़िकली और एज़ वेल एज़ मेंटली. फिज़िकली मेंटली स्पिरिचुअली जो है हमारा स्पीकर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है. उसका बेडरूम जो है वो भी बहुत डार्क प्लेस में है, कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर नज़र नहीं आ रही, जस्ट वहाँ पर साइलेंस है और डार्कनेस है. और जो थॉट ऑफ डेथ है वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्राइटन कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि दैट आई एम गोइंग टू क्लोज टू डेथ एवरी डे एंड सर्टनली डेथ विल अप्रोच सून, कि डेथ जो है वो बहुत जल्दी जो है मुझे अप्रोच कर लेगी. इवन नो वन कैन escape फ्रॉम डेथ एंड ही wonders that when and where I will die. Sharp contrast there is between work and the daily routine of the speaker. So we can say that कि यहाँ पर जो है उसने अपने डेली रूटीन को पहले डिस्क्राइब किया और फिर बताया कि किस तरह जो है वो डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो ये कह रहा है कि नो वन कैन escape फ्रॉम डेथ, कोई बंदा भी जो है वो डेथ से जान नहीं छुड़ा सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल. एंड इसके द काम और उसकी जो शार्पनेस दिखाई गई है, उसकी वर्क के साथ उसकी कंट्रास्ट दिखाया गया है. Then there is stanza number 2.
The mind blanks at the glare, not in remorse. The good not done, but the love not given. Time, torn off unused nor wretchedly because an only life can take so long to gleam clear of its strong beginnings and may never, but at the total emptiness forever, the sure extinction that we travel to and shall be lost on always, not to be here, not to be anywhere, and soon nothing more terrible, nothing more true. सेकंड स्टैंजा में जो है वो स्पीकर हमें क्या कह रहा है, इस स्टैंजा में जो है स्पीकर ने हमें जस्टिफिकेशन दी है कि वो एक्चुअली में जो है उसे जो फियर ऑफ डेथ है वो किस वजह से है। वो ये नहीं सोच रहा कि उसने जो अच्छे काम जो है, ही इज़ नॉट थिंकिंग दैट ही हैज़ डन सम गुड डीड्स, नो ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट देम, और डजंट ही इज़ थिंकिंग अबाउट दैट ही हैज़ शेयर्ड हिज लव विद अदर्स, और नॉट ही इज़ थिंकिंग अबाउट द टाइम दैट ही हैज़ वेस्टेड। हिज माइंड इज़ टोटली ब्लैंक, ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट द डेथ, दैट विल सून कैच मी, दैट विल सून अप्रोच मी। और वो ये कह रहा है कि उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल इनएक्टिव रही है हमेशा से, और डेथ जो है वो उसे बहुत जल्दी जो है वो ड्रैग कर लेगी। एंड ही डजेंट बिलीव इन आफ्टर लाइफ, के मरने के बाद जो उसके जो लाइफ मिलेगी वो उसके ऊपर भी जो है उसका कोई भी बिलीफ जो है वो किसी भी किस्म का नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा राइटर है वो रिलीजन को जो है वो डिसलाइक कर रहा है ड्यू टू हिज एम्प्टीनेस, ड्यू टू हिज नथिंगनेस, जो है वो रिलीजन को भी जो है वो निगेट कर रहा है, और जस्ट डेथ के बारे में जो है सोच रहा है, उसके बाद जो लाइफ आएगी उसके बारे में उसका कोई भी बिलीव जो है वो नहीं है। इससे हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जो है कंसेप्ट ऑफ रिलीजन जो है उसको निगेट कर रहा है, और उसका मतलब है कि जो डेथ है वो हर चीज़ को जो है वो ख़त्म कर लेगी। और वो ये कहता है कि वो लोग जिनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है रिलीजन के बारे में, लाइफ जो है उनकी ही होती है, और डेथ जो है उनके लिए एक अच्छा सोर्स साबित होता है। जैसे कि कीट्स कहते हैं कि ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ब्यूटी एंड इट्स ऑल में यू हैव टू नो, कि वो कहता है कि जिन लोगों का रिलीजन के बारे में अच्छा बिलीव है ना, रिलीजन के बारे में, उनके लिए डेथ जो है वो एक अच्छी चीज़ है, उनके लिए जो बाद की ज़िंदगी आएगी, जो बाद की लाइफ आएगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन वो लोग जिनका रिलीजन में ही बिलीव नहीं है तो उनका बाद की लाइफ में भी किसी भी किस्म का ट्रस्ट जो है नहीं है। और फिर हम इसलिए भी कह सकते हैं कि डेथ का जो है हमारे स्पीकर इसलिए ज़्यादा फियर है क्योंकि उसका रिलीजन के ऊपर कोई भी कंसेप्ट जो है नहीं है। स्टेंजा नंबर 3, दिस इज़ अ स्पेशल वे ऑफ बीइंग अफ्रेड, नो ट्रिक dispels religion used to try, that vast moth-eaten musical brocade created to pretend we never die, and special stuff that says no rational being can fear a thing it will not feel, not too much or not to smell, nothing to think with, nothing to love or link with, the anesthetic form which none can round। स्टेंजा नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो स्पीकर ये कह रहा है कि वो इसमें हमें बता रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू अवे, कि इस लाइफ में जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। देयर इज़ नो मॉड्यूलेट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन दैट यू कैन इस्केप फ्रॉम द डेथ। आपके पास कोई भी जो है वो ऑप्शन नहीं है कि आप जो है फियर ऑफ डेथ जो है वो रिड्यूस कर लें, ख़त्म कर लें। इवन दैट जो हमारा राइटर है, हमारे स्पीकर है, वो रिलीजन को भी जो है वो बार बार निगेट कर रहा है, और वो रिलीजन को जो है कह रहा है कि रिलीजन जो है वो बेसिकली हमें ट्रिक करता है, और ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, दैट्स वाई ही इज़ फेसिंग मोर trouble or more terror for the death. He also says that the people who have tried from the to escape from the death they are all fair। वो ये कहता है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी डेथ से कोशिश की है बचने की, कोई भी जो है वो इससे बच नहीं सका, और रिलीजन जो है वो बहुत बड़ा यानी ट्रिकी मैनर है जो लोगों को जो है वो ट्रिकी कर रहा है। और वो ये कहता है कि रिलीजन जो है वो बेसिकली हमें डिसीव कर रहा है। आफ्टर रिजेक्शन ऑफ द रिलीजन ही मूव टुवर्ड्स द फिलोसफिकल आइडियाज़। वो कहता है कि हम जो है डेथ को फील नहीं कर सकते, इवन दैट वी कैन नेवर फील द डेथ, एंड देन व्हाई वी हैव द फियर ऑफ इट। कहता है जब हम एक चीज़ जो है उसको फील ही नहीं कर सकते तो हमें उसका फियर भी जो है वो क्यों है। डेथ जो है एनेस्थीसिया है, हॉरर ऑफ डेथ है, डेथ कैन नेवर फिनिश द थॉट ऑफ डेथ। वो कहता है कि हॉरर ऑफ डेथ जो है वो कभी भी उसकी जान नहीं छोड़ सकते, और वो कभी भी इनसे जो है वो छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए जो है वो डेथ का फियर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ जो है उसके लिए यही है, और जिसकी वजह से जो राइटर को, स्पीकर को किसी भी किस्म का कंफर्ट नहीं आ रहा। Stanza number 4, and so it stays just on the edge of vision, a small unfocused blur, a standing chill that slows each impulse down to indecision. Most things may never happen, this one will, and realization of it rages out,
In furnace fear, when we are caught without people or drink, courage is no good. It means not scaring others, being brave. Let's know of the grave. Death is no different, meant at than withstood. स्टेंजा नंबर 4 में जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फुली इग्नोर, कि आप जो है देयर इज़ नो मॉड्यूलेट, देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन कि आप जो है डेथ के फेयर को जो है वो इग्नोर कर लें। आपके पास कोई भी ऐसा जो है वो ऑप्शन नहीं है। इवन दैट इट इज़ मोर हॉरेबल व्हेन यू आर अलोन, कि आप जब अकेले होते हैं, डार्कनेस में होते हैं, तो डेथ का फेयर जो है वो आपके लिए ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। और अगर आप किसी क्राउड में होते हैं, किसी लोगों के दरमियान होते हैं, तो टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट आप जो है इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो ये कहता है कि अगर मैं क्राउड में भी होता हूँ तो फिर भी मुझे यही ख्याल होता है कि मेरी डेथ जो है वो मेरे इर्द गिर्द ही है, मेरी सब कॉन्शियस जो है वो डेथ को फील कर रही होती है। फियर ऑफ डेथ जो है वो इसके लिए बिल्कुल जेन्युइन है, रियल है। वो उससे कभी भी किसी भी सूरत जो है वो इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पाता। हर वक्त जो है उसे यही लगता है कि मेरी डेथ जो है वो मेरे कहीं इर्द गिर्द है। और एवरी वन हैज़ टू टेस्ट द डेथ, हर बंदे को जो है वो डेथ का जायका जो है वो लाजमी टेस्ट करना है। एंड सडनली जो है स्पीकर ने जो है एग्रेसिव जो है वोकेबलरी यूज़ करना स्टार्ट कर लिया, एज लाइक ही इज़ यूजिंग द टर्म ऑफ फर्नेस, ही इज़ यूजिंग द वर्ड ऑफ फर्नेस। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट ही इज़ ऑल्सो सेइंग दैट कि जो फियर है ऑफ डेथ है वो अल्कोहल और कंपनी लोगों के दरमियान जो है, ये दो चीज़ें हैं जो आपका फियर ऑफ डेथ जो है वो रिड्यूस कर सकती हैं। इवन दैट ये चीज़ें जो है वो रिड्यूस कर सकती हैं। बट इफ़ यू आर ब्रेव, दिस इज़ दैट इफ़ यू आर ब्रेव यू कैन नॉट बी, यू कैन escape फ्रॉम डेथ, नो नॉट एट ऑल। अगर आप ब्रेव है इट डजेंट मैटर। इफ़ यू आर courageous, नो नॉट एट ऑल। गुड, इवन यू आर गुड, यू आर बैड, courageous, कवर्ड, डेथ, फॉर डेथ इट डजेंट मैटर। डेथ के लिए जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती। डेथ ये नहीं देखती हाउ मच ब्रेव यू आर, डेथ ये नहीं देखती हाउ मच कवर्ड यू आर, डेथ ये नहीं देखती हाउ मच गुड यू आर। वो इन सब चीज़ों से जो है वो बालातर होती है। उसे किसी भी चीज़ का जो है वो सरोकार नहीं होता। उसने जिसको लेके जाना है वो उसी को लेके जाती है। सो वी कैन से दैट एवरीवन, एनीवन कैन नेवर escape फ्रॉम द डेथ। कोई भी इंसान जो है, कोई भी लिविंग चीज़ है, वो डेथ से जो है कभी भी escape हासिल नहीं कर सकते। Then the last stanza, stanza number 5. Slowly light strengthens and the room takes shape. It stands plain as a wardrobe. What we know, have always known that we can't escape, yet can't accept. One side will have to go. Meanwhile, telephones crouch, getting ready to ring in locked off offices, and all the uncaring, intricate, rented world begins to rouse. The sky is white as clay with no sun. Work has to be done. Postmen, like doctors, go from house to house. This was the last stanza of our poem, Hubat. कंक्लूडिंग स्टैंजा में जो है, फाइनल स्टैंजा जो है, ये लास्ट स्टैंजा जो है, इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि जो राइटर जो है, स्पीकर जो है, ही इज़ गोइंग टू कंक्लूडिंग हिज थॉट। वो जो है अपने थॉट्स को भी जो है वो कंक्लूड कर रहा है। द लाइट ऑफ द मॉर्निंग फिल्स टू द रूम। जब सुबह होती है, अभी तो ये सारी डार्कनेस की वो बातें कर रहा था, जब सुबह होती है, लाइट आती है, तो उसके रूम जो है वो लाइट से जो है वो फिल हो जाता है। और वो जो है उसके टू सम एक्सटेंट उसका फियर ऑफ डेथ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगेन ही असर्ट्स द फेयर ऑफ डेथ, उसे दोबारा जो है वो डेथ का फेयर जो है वो उसे हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस कभी भी उससे उसने कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर पाया। दाउ इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट, वो कहता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट। डेथ को एक्सेप्ट करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इवन इम्पॉसिबल टू एस्केप, के इससे एस्केप हासिल करना तो है ही इम्पॉसिबल। और वो जो है आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में सोच रहा है, और ये कह रहा है कि एवरी साइड हैज़, एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स। हर चीज़ की जो है वो दो डायरेक्शंस होती हैं। अगर एक डायरेक्शन आती, एक चीज़ है, तो ऑपोजिट भी जो है उसकी ज़रूर आती है। इफ़ देयर इज़ लाइट देन देयर विल मस्ट बी डार्क। अगर लाइट है देन देयर विल मस्ट बी डार्क। और अगर इफ़ देयर इज़ लाइफ देन देयर विल मस्ट बी डेथ। सिम्बॉलिकली जो है उसने हमें इस तरह ये चीज़ को जो है समझाया है कि किस तरह जो है वो हर चीज़ की दो साइड्स होती हैं, कि उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो ज़रूर आती है। क्राउच को जो है वो उसने पर्सोनीफाई किया है यहाँ पर, कि
एंडिंग जो है वो किसी भी चीज़ की इस स्टैंजा की जो एंडिंग है उसने एम्बिजियस बनाई है, और लास्ट लाइन में जो है उसने पोस्टमैन और डॉक्टर्स के जो वर्ड को यूज़ किया है, वी कैन से दैट उसने जो है यहाँ पर सिम्बॉलिकली यूज़ किया है। सिम्बॉलिकली किस तरह से उसने यूज़ किया है, वो कहता है कि जिस तरह पोस्टमैन जो है वो बातों को डिलीवर करने के लिए, लेटर्स डिलीवर करने के लिए हर एक के घर जाता है, डॉक्टर जो है वो हर एक पेशेंट को चेक करने के लिए एक एक मरीज़ के पास जाता है, सो इज़ द केस विद द सेम केस इज़ हैपनिंग विद द डेथ। डेथ भी जो है जिसको उसने लेना होता है वो हर बंदे के पास खुद जाती है जिस तरह। लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क ये है कि जो पोस्टमैन हैं वो अच्छी न्यूज़ जो हैं या बैड न्यूज़ जो हैं वो लोगों को, लाइव लोगों को जो है वो, ज़िंदा लोगों को जो है वो चीज़ें डिलीवर करती है, और जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को जो है वो रिकवर कराते हैं, पेशेंट्स को जो है वो रिकवर करते हैं, ठीक करते हैं, लेकिन डेथ जो है वो फिनिश कर देती है हर चीज़ को। Then in the end we can say that what are the basic themes of this poem. Then there is, we are discussing from the very first stanza or the very first line that death and the isolation are the major theme of this story, कि किस तरह हमारे स्पीकर को जो है फियर ऑफ डेथ है, और वो ये कह रहा है कि किसी भी तरह से जो है वो इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहा, और कोई भी बंदा जो है लिविंग चीज़ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी टेस्टेड द चेक द टेस्ट ऑफ डेथ। हर बंदे को जो है वो टेस्ट का जायका चखना है, और उसने इसी बात को बार बार हर स्टैंजा में जो है एक्सप्लेन किया है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द उबैड, एंड thank you so much guys for listening me, and if you people have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the button of bell icon so you may be able to get the notification of my coming videos. Thank you very much for your precious time, and if you really like my video then please share and also tell me in comment box. Thank you so much.